you can see my screen. Can you guys see my screen? If yes, then type it. Okay, awesome. Excuse me on that, a little bit new here. Well, I'm not sure how many of you guys know the Agile, but before I go ahead, can I have like, do you guys have any background or anything you know about that? Can I have a chat? Like, if you know, just yes, no, quickly. Great. Sounds like it's like ratio like 80-20. Anyway, I give you. So in general, what happens like if you go for in some company or anywhere, then what you do, just you get a project and then you work, right? I mean, you don't know the whole picture. You do your own snippet, like जो काम दिया गया है वो काम कर लेते हैं, that's all, right? But the whole picture comes to the end-to-end development. For example, मुझे कार बनाना है, तो कार बनाने के लिए क्या करता है कि एक बड़ी सी टीम रहती है, किसी को व्हील बनाना पड़ता है, किसी को cover बनाना पड़ता है, and then you prepare the car, right? It's the same thing in a software development. If you need to make a website, then what you do, somebody do the one feature A, and then feature 2 and feature 3, and then ultimately join it into the feature, right? And that's how it works. So generally agile, excuse me. It's a little slow. So generally agile is nothing but it's iterative approach to manage a project. जो बड़े प्रोजेक्ट आते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाता है इजीली, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस में कैसे agile को फिट किया जाता है. Mainly अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो it's generally used for the software development and project management in easy way to deliver the things faster. कि कैसे ऐसा सामान ऐसा चीज बनाया जाए जो मार्केट में जल्दी आ जाए और people can use it, and then you can start doing the incremental things. You start adding a feature that can help, that will help generally to users, right? So that's how it goes. Instead of big bang, like for example, if you have some big project, for example, I take like a banking, right? In banking, most of you these days like using phone, right? Now everything, when you need any phone, any bank account, then what do you just go on a bank and then a bank account open किया, and then उसके बाद क्या है, बार-बार बैंक जाने की जरूरत पड़ती है. Then these days, like most of the bank offering you mobile banking or /net banking, right? Then what do, like just go and log in and then you see all those details, right? But अभी भी बहुत सारे बैंक हैं जिनके पास नहीं है, बहुत कुछ नए प्रोजेक्ट आते रहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, these are credit card, you just give go and then fill the form, right? तो जनरली कैसे होता है, जो बिग बैंग होते हैं, तो बिग बैंग करने में क्या होता है कि एक बड़ा प्लान एक्सिक्यूट करने में वो टाइम लग जाता है, 6 महीने हो जाएंगे, 7 महीने हो जाएंगे. एंड देन पहले के प्रोसेस में यही होता था कि 7 महीने अगर हो रहे हैं तो हो सकता है मैं मार्केट से आउटडेटेड होंगे, जो मैं आज प्लान कर रहा हूँ 7 महीने बाद हो सकता है कुछ और हो सकता है, मार्केट ट्रेंड चेंज हो सकता है. तो जनरली अजाइल एक अप्रोच है जो डिलीवर करता है थिंग्स छोटे छोटे भागों में, और वो क्या करता है कि मार्केट के हिसाब से चेंज करता है. ओके, विल डिस्कस मोर इन अ बिट कि कैसे ये हेल्पफुल है अजाइल. बट इन शॉर्ट टर्म में एक ऐसा है कि जो बड़े प्रोजेक्ट है छोटे चंक में डिवाइड करके एक फास्टर वे में और इजी हेडेक के कारण वो इजी हेडेक के साथ वो डिलीवर करता है, rather than लाइक एक मैं बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाऊं बिग बैंग करूं, इट गोना टेक टाइम. सो ये सिंपल है. जनरली अजाइल में क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेमवर्क, अजाइल सेल्फ फ्रेमवर्क, तो अजाइल में कैसे ना मल्टीपल अलग अलग फ्रेमवर्क बनाए गए हैं जो यूजफुल है डिफरेंट डिफरेंट एरिया कवर करने के लिए. जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जिसमें स्क्रम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं स्क्रम फ्रेमवर्क. और एक कानवान है, कानवान एक सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है. जैसे अभी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसे होता है कि एक डेवलपमेंट होता है, एक न्यू फ्रेश डेवलपमेंट होता है, एंड अनदर वन इज लाइक जो एक डेवलप हो चुका है कुछ सपोर्ट चाहिए, तो दैट्स कॉल्ड दो अलग बिजनेस लॉजिक है. और बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, बट यहाँ इस अजाइल में आज हम बात करेंगे सिर्फ स्क्रम के लिए, कैसे सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनियों में काम होती है, स्क्रम कहाँ यूज होता है. खानवान थोड़ा हेड्स अप दे, बट जनरली फोकस होगा कि आज अजाइल क्या है और स्क्रम फ्रेमवर्क कैसे, अजाइल स्क्रम कैसे काम करता है. इन जनरल मल्टीपल, अगर आप देखोगे इंटरनेट पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, स्क्रम, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, लीन, कैनवान, क्रिस्टल, राइट, आरईपी, देयर शॉर्ट फॉर्म. बट एक सर्वे में बताया गया कि स्क्रम जो है ऑलमोस्ट 59 to 60% यूज किया जाता है अमंग्स अदर. दैट मींस लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अजाइल फ्रेमवर्क इज स्क्रम. एक एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बता रहा था कि एक बिग लॉन्च जनरली क्या होता था कि वाटरफॉल पीपल यूज करते थे, अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, पर एक ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि एक बड़े लॉन्च की तरह हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, एक नेट बैंकिंग है, हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे हमें नेट बैंकिंग यूज करना है कि यूजर लॉगिन कर सकता है, यूजर अपना हिस्ट्री देख सकता है, यूजर अपना ट्रांजेक्शन कर सकता है, फिर किसी को पैसिव करके चेक कर सकता है कि हाँ कॉल बैक एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, सर्च कर सकता है, राइट. तो वाटरफॉल में कैसे होता था कि एक बार एज ए क्लाइंट क्या होता था, एक बार स्कोप मिल गया, बिजनेस वैल्यू मिल गई कि ये एक बनाना है, एंड देन उसके बाद उससे प्लानिंग होती थी, प्लानिंग एक बार प्लानिंग किया, डॉक्यूमेंटेशन किया, इंप्लीमेंटेशन किया, एंड देन इट कम्स टू कि उसमें क्या डेटाबेस यूज करना है, बैकएंड यूज करना है, फ्रंट एंड यूज करना है, एंड देन एक बार जब तीनों का मर्ज किया, फिर टेस्टिंग स्टार्ट हुआ, देन बिग लॉन्च, राइट. बट द मेन की इंपोर्टेंट इज अ टाइम, लाइक ड्यूरिंग दिस प्रोसेस it takes time, you never know, right? As I said that earlier, that it may take 7 months or it may take 5 months, right? But until you don't launch, there could be a possibility कि market में आप कहीं नहीं हो, market already आगे बढ़ चुका है. But that's not the key area. The key area is अगर हम 5 महीने बनाते हैं, then I represent to the client, फिर क्या होगा कि he's like, hey, I thought of something different, but the outcome is something different. Then what they will ask you, they'll ask you to change it, right? And then changing that at the end, it may be difficult, right? कि for example एक आपको एक बना application बनाने के लिए बोला गया, आप बना दिया, you are more happy, yes, I'm all good. But the vision, who has a vision for this one is, hey, this is not something which I'm looking for, right? Then फिर क्या होगा कि बोलेगा अरे ये चेंज करो, वो चेंज करो, ये चेंज करो, and then you end up with कि अब इस जो हमने पहले सोचा था उसमें आर्किटेक्चर चेंज करना होगा, डेटाबेस चेंज करना होगा, फ्रंट एंड चेंज करना होगा, बैक एंड, there are a lot many changes, right? And that could lead a problem. I mean, problem in the sense that could lead another time.
एंड द टाइम इज मनी, राइट? दैट्स हाउ इट गोस। सो ट्रेडिशनल में कैसे होता था कि बड़ा, लेकिन अजाइल में क्या करते हैं, अजाइल में सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक विजन रहता है कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि नेट बैंकिंग का, तो नेट बैंकिंग में सबसे पहले क्या देखेंगे कि नेट बैंकिंग में ऑफ कोर्स एक बार में पूरा सब कुछ नहीं दे पाएंगे, पर एक काम कर सकते हैं कि यूजर को लॉगिन करके हम उसको हिस्ट्री ये दिखा सकते हैं कि आपका अकाउंट बैलेंस कितना है। तो अजाइल जनरली क्या करता है, इंक्रीमेंटल वैल्यू बोलता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो पूरा देखता है और उसको डिवाइड करके चंक में रिलीज करता है कि पहले एक स्टेप में यूजर को लॉगिन करने दे दिया और उसका हिस्ट्री, देन इट्स सीपेबल, राइट? यू कैन सी दैट हियर ऑन द स्क्रीन लाइक वर्जन बाय वर्जन, कि वर्जन में सीप 1, वर्जन 2, वर्जन 3। तो पहले वर्जन में क्या होगा, लॉगिन फंक्शनलिटी विद अमाउंट, द सेकंड में क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, द थर्ड में क्या हो जाएगा कि मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूं, फोर्थ में क्या सकता है, मैं फिल्टर कर सकता हूं, मैं बेनिफिशियरी ऐड कर सकता हूं। बट एट द सेम टाइम आप देख रहे हो कि राइट, ये क्या हो रहा है कि एक एक वर्जन में इट्स नॉट अ ब्लॉकर, यूजर कैन स्टिल यूज इट, राइट? द एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हो, एंड आपका एप्लीकेशन मार्केट में है, आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है, एंड देन यू कैन सी द गेट द फीडबैक एट द सेम टाइम कि hey, this is not good, then you can amend it in a version 2, you can improve it, right, rather than waiting the 6 month. So that's why agile is a more successful, although the same process, nothing changed, like you can see the database, front end, back end, testing, and that also goes in the same within time period. But agile क्या करता है जनरली, जब हम चंक में छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं तो ये प्रॉपर सही से चलता है। नहीं तो क्या होता है कि फिर से वही होगा कि स्टेक होल्डर जिनका काम है, जिनका काम जो आपको काम दिया है, वो आप देख नहीं पाएंगे क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये छोटे टाइम स्पीड में क्या होगा कि आपको डिलीवर कर रहे हो, एंड देन ओके, आई थिंक दिस हैज टू बी चेंज, देन ओके, नो प्रॉब्लम, आई गिव यू द नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक, राइट? Then the change is getting changed, and then user getting that, hey, this is what I'm looking for, right? So that's how it works in waterfall. And a simple example, प्रोसेस में होता है, तो पहले सिंपल सा एक रील बनाते हैं, देन इसका बॉडी बनाते हैं, देन यू एट द एंड यू कैन सी कि हमारा आउटकम क्या है। एट द सेम टाइम in terms of agile, you will also get the same outcome, but the point is here you can see the things which you delivering is getting used, right? I mean, for example, the wheel itself, अगर waterfall में तो wheel आप यूज नहीं कर सकते, right? But at the same time the first step is a hoverboard, you can still you can run it, right? That's the mindset. The same आगे आप even then you can make it a two wheel, no, you none of use that, right? But later on you can जो bicycle बना दिए, चल रहा है। So that's how it differentiates between the waterfalling process. Again, I won't say that which one is good. It depends on the project, right? It depends on the company, how it fits it. Okay, but generally these days, agile Scrum is more popular. So, now, a traditional funda is like ऐसा नहीं है कि ये करना है और वही यूज करना है. It's all depends on you. How do you see that? It's all mindset. You cannot change the people like, hey, ये use करना है. This is the right one. This is the wrong one. It's all up to see which one is giving the value, right? And let's say a simple process example में अगर X team X बनाता हूँ, team Y बनाता हूँ, then Y is more flexible. He can give the more value, right? But the X थोड़ा time लगेगा. But in some cases, X could be a fit, right? So it depends where you to fit it. But these days in software companies, it's like 90% people say agile. Now we're gonna go more on Scrum side, how it works, right? And it is more important. Well, if you guys have any question, I think feel free to enter in chat room. Probably after this one, I can take one by one. So don't wait until we start. So if you get any question, type it down, right? That will help you, to think about the other one. So what is agile and what is Scrum? It's nothing but it's a collaborative, continuous delivery of the business value, right? When you talk about the continuous delivery, that's talking about like, hey, adding the multiple feature, and the collaboration with the stakeholder. That's how it goes. So for example, आपका एक product है, team A, for example, stakeholder has idea, and then IT team, all collaborating together. Then they can see that, hey, what exactly the stakeholder is looking for and what I am building it, whether it's getting us, whether it's getting them fulfill or not. What's the business value, how they think about that. So that's why the word term is called incremental release. Incremental release is nothing but that's what I said earlier. It's like version by version. Like if you deliver the feature A, the next delivery is going to be feature B, the next delivery is going to be feature 3, 3, something like that. It also makes a more collaboration between IT and the business collaboration. Okay, you can, once you start meeting those business value frequently, you can understand their background, their mindset, and then you can help them in a better way, right? It's not wait like एक बार recommend दे दिया and then you start keeping working. There is no communication, and then at the end something all gone wrong, right? What he was thinking, timeline is delay, etc., etc. But here you start collaborating. इन जनरल टर्म ऐसा कहा जाता है कि अगर जितना ज्यादा बात करेंगे, जितना ज्यादा अपना थॉट प्रोसेस शेयर करेंगे, उतना लोग आपको अच्छे से समझेंगे. And that's the same thing goes here, right? So generally, more collaboration, more time is going to be a beautiful outcome. स्क्रम कोर वैल्यूज, स्क्रम का एक ये भी फंडा है कि स्क्रम एक टीम होती है. आगे हम देखेंगे स्क्रम टीम में चार लोग, मतलब एक अलग अलग, जनरली बोलते हैं स्क्रम टीम इज नथिंग बट डेवलपमेंट टीम. ओके, आगे देखेंगे हम कैसे करते हैं. बट स्क्रम टीम का सबसे मेन चीज कैसे रहता है कि एक ये भी होना चाहिए कि ओपननेस होना चाहिए कि कैसा है. लेट्स से एक टीम इज पीपल ऑफ 5, देन ऐसा नहीं कि सब अपना अपना काम कर रहे हैं. दे वर्क टुगेदर, दे शुड हैव कॉरेज. अगर गलत है तो गलत है, बट एट द सेम टाइम कुछ आइडिया है तो आइडिया भी शेयर करने का कॉरेज होना चाहिए. फोकस होना चाहिए कि अच्छा ये व्यू क्या है, हमें क्या डिलीवर करना है. सो पीपल शुड, एवरीवन शुड अंडरस्टैंड. जनरली ये नहीं कि मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूं, मैं बैक एंड डेवलपर हूं, आई जस्ट डू दिस वन, आई विल डू दिस वन. दैट्स फाइन, राइट? बट यू शुड बी हैव अ टी साइज, लाइक यू शुड बी फ्लेक्सिबल दैट आई कैन डू इट. दीस डेज यू गाइस से लाइक अ फुल स्टैक, राइट? अगेन दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. कमिटमेंट होना चाहिए कि हाँ करना है तो करना है, राइट? द टीम के साथ रिस्पेक्ट भी होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बोल दिया, ये भी बोल रहा है, तो ऐसा नहीं कि मैं जस्ट एग्जांपल कि अगर कोई लीड है, टीम लीड है, ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं दैट्स अ वर्ड फाइन, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू रिस्पेक्ट योर पीयर, एंड देन यू शुड ड्राइव इट टुगेदर, राइट? ओपननेस एक चैलेंज होता है कि बहुत सारी टीम होता है कि अरे मैं बोलूंगा तो क्या होगा. If you have idea, that's good, right? You can share it. So these are the 5 pillars that generally agile or scrums, promote that.
So once you follow these four, I think you can understand the business value, you can understand the goal, and then you can focus on it. You can also openness, like it is more important. Like you can see, hey, it's going right way or wrong way. You can share your idea. That helps, right? Now, one of the key part. Sorry, excuse me. Somewhere I can try to. Okay, anyway. So we're gonna talk about here in this one, how agile works, right? So there are four roles, generally four people. The one product owner, stakeholder, and scrum master, and scrum team members, right? These are the four. ये एक अगले से अभी अभी बात करेंगे ये चार चीज़ों के बारे में और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और कैसे कोलैबोरेट होते हैं। सबसे पहला चीज़ है कि हमें ये समझना होगा कि स्टेक होल्डर कौन है। स्टेक होल्डर जिसका काम है, सीधी भाषा में जिसका काम है, जो काम दे रहा है आपको, दैट्स कॉल्ड स्टेक होल्डर, राइट? अब प्रोडक्ट ओनर कौन होता है कि जो आईटी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जनरली क्या होता है कि कोई अगर प्रोजेक्ट आ रहा है, दैट मींस स्टेक होल्डर इज गिविंग अ प्रोजेक्ट, देन हु विल बी रिस्पांसिबल? द प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर और स्टेक होल्डर के बीच में बहुत सारे कम्युनिकेशन होते रहते हैं। वो अपना शेयर करता है कैसे क्या करना है, देन प्रोडक्ट ओनर हैज अ डिफरेंट विजन कि इसको कैसे करवाना है, प्रोडक्ट को कैसे एक मार्केट में लॉन्च करेंगे। उसके दिमाग में एक पूरा पिक्चर छप जाता है कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट है, उसको हमें कहाँ से कैसे कट करेंगे, फिर क्या चीज़ हम डिलीवर पहले करेंगे, क्या चीज़ डिलीवर बाद में करेंगे, कैसे बिजनेस वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट ओनर जैसे हम नेट बैंकिंग एग्जांपल ले रहा है, अगर लॉगिन फीचर है, राइट? लॉगिन फीचर इज मोर इंपोर्टेंट, राइट? अंटिल यू डोंट लॉग इन देन यू कैनॉट गो अहेड, राइट? बट बिफोर लॉगिन यू आल्सो नीड टू रजिस्टर, राइट? तो ये सब विजन किसके पास रहता है? प्रोडक्ट ओनर के पास। स्टेक होल्डर तो बोलिए ओके आई नीड अ नेट बैंकिंग, स्टेक होल्डर क्या बोलेगा? आई नीड अ नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में क्या होना चाहिए कि यूजर यूजर जो है अपना हिस्ट्री देख सकता है, यूजर ट्रांजैक्शन कर सकता है, अकाउंट देख सकता है और फिल्टर कर सकता है, राइट? लेकिन ये सब रिक्वायरमेंट स्टेक होल्डर आ गया, फिर वो भी बोलेगा कि और कुछ कर सकते हैं तो आप बताओ इसको कैसे करना है। दैट्स समथिंग रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा? ये देखेगा अच्छा ये चाहिए, लेकिन इसको पूरे को डिलीवर करने में तो मुझे 6 महीने लग जाएंगे, बट ये 6 महीने में कैसे डिलीवर होगा? तो वो क्या देख करेगा कि ओके लेट्स डू वन थिंग, द व्हिच वन इज अ मोर इंपोर्टेंट बिफोर लॉगिन, द रजिस्टर इज थिंग, राइट? यू नीड टू रजिस्टर फर्स्ट, input all your details and register, then register is one of the important, then he will divide in the okay register, then after the registration it has been successful, email जाना चाहिए, फिर email verification होना चाहिए, then it comes to the and then login के बाद क्या होना चाहिए कि ये अकाउंट ये अकाउंट का कितना बैलेंस वो दिख सकता है। देन फोर थिंग्स इज लाइक मोर इंपोर्टेंट, ये चार चीज होना ही चाहिए तभी एक्सेप्टेबल हो सकता है। ऐसा तो नहीं करेगा डायरेक्टली अच्छा एक काम करो आप ये फीचर बना दो कि हिस्ट्री कैसे होगा। यू बिल्ड हिस्ट्री बट डजंट मेक सेंस, राइट? कस्टमर लॉगिन ही नहीं कर सकता है तो वहां जा ही नहीं सकता। द प्रोडक्ट ओनर इज रिस्पांसिबल टू सी द विजन ऑफ द स्टेक होल्डर और उसको कैसे डिराइव करना है इन टू एंड, दैट्स हिज रिस्पांसिबिलिटी। ये एक प्रोसेस है, एक सर्कल है, इसके बारे में और डिटेल जानेंगे कैसे होगा। बट जनरली प्रोडक्ट विजन को क्या करता है, एक एपिक में होता है। एपिक का वर्ड नथिंग बट ऑफ कोर्स आगे देखेंगे एपिक क्या है। क्या होता है कि एपिक को सही मायने में क्या बोलते हैं, एक बड़े चीज को तोड़ के छोटे छोटे डाउन में कन्वर्ट करना, दैट्स कॉल्ड एपिक। अब एग्जांपल यहाँ भी देख सकते हो, एपिक आर नथिंग बट अ लार्ज बॉडीज ऑफ वर्क दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द नंबर ऑफ स्मॉलर टास्क। तो जनरली जो हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट विजन को क्या करेगा, एपिक में कर देगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल अभी हमने देख रहे थे कि एक नेट बैंकिंग में क्या हो सकता है, लॉगिन हो सकता है, राइट? एंड देन रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसके बाद बैंक का बैलेंस हो सकता है, राइट? ईमेल वेरिफिकेशन हो सकता है, ईदर वी कैन ऐड द मोबाइल वेरिफिकेशन, राइट? तो वो क्या करेगा कि इसको एपिक में कन्वर्ट करेगा। बट एपिक में ये तो चार कर लिया, राइट? इसके बाद ये भी एपिक में ऐड करेगा कि फिल्टर, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, इवन ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप, कुछ ऑफर है, क्रॉस सेलिंग, मल्टीपल थिंग्स, राइट? द एपिक इज बिग थिंग्स। तो ये क्या करा, एक बड़ा विजन को क्या किया, छोटा में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन डेवलपमेंट लेवल पे अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा आप मुझे एक काम करो, रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन का क्या करो कि एक रजिस्ट्रेशन का पेज बना दो, देन आपको भी कंफ्यूजन होगा अच्छा रजिस्ट्रेशन कैसे बना सकते हैं, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा कैसा है। तो एपिक को फिर फर्दर क्या करते हैं, उसको फिर से ब्रेक डाउन करते हैं जो स्टोरेज में करते हैं, दस अगेन फर्दर ब्रेक डाउन। तो अब एक रजिस्ट्रेशन में क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन में हमें क्या चाहिए कि रजिस्ट्रेशन में हमें एक नेम चाहिए एंड देन मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए और कुछ डिटेल चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट कैन बी फर्दर ब्रेक डाउन। तो वो स्टोरीज में होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, स्टोरीज फर्दर स्टोरी भी बड़ी हो जाती है। जैसे एग्जांपल है, ये स्टोरी में हमने तो ब्रेक डाउन कर दिया, नेम होना चाहिए, लेकिन नेम में भी क्या होना चाहिए कि अब नेम जो है अल्फा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, ओनली कैरेक्टर होना चाहिए, राइट? द सेकंड थिंग इज लाइक वैलिडेशन होना चाहिए, इनपुट नहीं होना चाहिए। तो ये भी क्या होगा, इसको भी फर्दर ब्रेक डाउन करके टास्क में कन्वर्ट करते हैं। जब ये डेवलपमेंट लेवल पे आता है देन इट कॉल्ड टास्क, राइट? तो ये सबसे बड़ा क्या पहला क्या होता है कि एपिक विजन को कन्वर्ट करके एपिक में तोड़ा जाता है एंड एपिक इज अ फर्दर ब्रेक डाउन इन यूजर स्टोरी, ठीक है? नाउ यूजर स्टोरी को क्या करते हैं कि जनरली इसको प्रोडक्ट बैकलॉग भी बोलते हैं। अब एक टूल होते हैं, एक अलग-अलग बहुत सारे टूल होते हैं। आजकल जीरा आप लोगों ने सुना होगा। जीरा एक टूल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। तो जनरली ये आप वहाँ पे एक बोर्ड सेटअप कर सकते हो, इसका एक स्क्रम बोर्ड सेटअप कर सकते हो, कानबान बोर्ड सेटअप कर सकते हो। तो जनरली इसको क्या बोलते हैं, जो ये एपिक और स्लैश यूजर स्टोरी, इसको प्रोडक्ट बैकलॉग बोलते हैं। बैकलॉग एक टर्म है जहाँ पे आपको एक लिस्ट ऑफ ऑल दोस टास्क है, दैट्स कॉल्ड बैकलॉग, राइट? अब उसके बाद क्या होता है, जब आपके पास एक एपिक पूरा तैयार हो गया कि विजन के हिसाब से आपने चंक कर दिया मल्टीपल सेक्शन में। अब उसके बाद क्या, उसको भी फर्दर डिफाइन कर दिया कि एक-एक मॉड्यूल को भी फर्दर डिफाइन कर दिया कि उसमें क्या होना चाहिए। एंड देन वी गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग में क्या होता है, दैट्स कॉल्ड स्प्रिंट प्लानिंग, राइट? आप अगर वर्ड सुने होंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, स्प्रिंट प्लानिंग होता है। स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है कि पूरी टीम बैठती है, ओके? कि स्क्रम टीम बैठती है, डेव टीम बैठती है, उसके बाद क्या प्रोडक्ट ओनर बैठता है और स्क्रम मास्टर बैठता है, राइट? डेव टीम, व्हेन आई रेफरिंग टू डेव टीम इंक्लूडिंग ऑल फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी यूआई यूएक्स प्रोटोटाइप एवरीथिंग, दैट्स कॉल्ड डेव टीम। तो अजाइल में क्या है कि टीम ऐसा नहीं हो सकता मैं फ्रंट एंड टीम हूं, मैं बैक एंड टीम हूं। इट्स लाइक अ टीम, अ डेवलपमेंट टीम व्हिच बिलोंग्स टू द एवरीवन, लाइक एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस वन। तो जब स्प्रिंट प्लानिंग होती है तो स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है कि ये सब बैठते हैं। जनरली इसको स्क्रम टीम भी बोलते हैं। तो स्क्रम टीम इज नथिंग बट इंक्लूडेड ऑफ डेव टीम, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर। अब ये तीनों में क्या है, उसके बाद क्या होता है कि ये डेव टीम इज इंक्लूडिंग एवरीवन, लाइक डिजाइनर, फ्रंट एंड, बैक एंड, एंगुलर डेवलपर, एनीथिंग, एवरीवन।
So that's why you can see here the Scrum team member, right? So the Scrum team is a consist of product owner, Scrum master, and all those development team stakeholders छोड़ के. प्लानिंग में क्या डिफाइन होता है कि अपना प्रोडक्ट ओनर क्या करता है कि वो अपना विजन देता है कि अच्छा ये हमने ब्रेक डाउन किया है और इसमें हमें हमारा फोकस ये लेना है. तो फिर डेवलपमेंट टीम या किसी का और व्यू है तो दैट वी कैन डिस्कस, देन वी कैन डू द प्रायोरिटाइजेशन कि क्या करना है नहीं करना है, कौन सी चीज लेना है. हो सकता है राइट द वे प्रोडक्ट ओनर थिंक्स अबाउट देयर कुड बी अ ब्लॉकर, राइट. पॉसिबल नहीं है कि टेक्निकल चैलेंजेस है तो प्रोडक्ट ओनर शिफ्ट करेगा, अच्छा वी कैन नॉट डिलीवर द ए, देन लेट्स डू वन थिंग अ बी व्हिच इज पॉसिबल, a good customer value in the market, right? Generally इसको MVP1 भी बोलते हैं, MVP बोलते हैं, minimum viable product, a product which is launching that can be usable, right? तो स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होता है कि आप डिसाइड कर लेते हो कि हमें क्या क्या चीज करना है, ठीक है. इसके बारे में और बताएंगे कि आगे कैसे होता है. अब एक बड़ा सा वर्ड देख रहे हो स्प्रिंट. स्प्रिंट क्या होता है? नथिंग बट एक टाइम फ्रेम, एक टाइम बॉक्स है. जनरली क्या होता है कि एक 2 से 4 वीक के लिए टाइम बॉक्स आप डिसाइड करते हो. हर कंपनियों का अपना-अपना रूल होता है. देयर इज नो कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क कि हमें यही करना चाहिए, यही करना चाहिए. जनरली कंपनी के हिसाब से ये डिफाइन करते हैं. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना-अपना ये होता है. देन यू कैन डू इट लाइक अ 2 वीक और ईदर बिटवीन 2 टू 4 वीक. ओके, ये इस टाइम फ्रेम है. इस टाइम फ्रेम में क्या होता है? सबसे पहले स्प्रिंट प्लानिंग आपने समझ लिया. इसमें क्या होता है कि हमने प्लान कर लिया. पहले तो प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट को कैसे डिवाइड किया, एपिक में कैसे किया, यूजर स्टोरीज में, एंड देन यू कैन सी यूजर स्टोरीज में कैसे हम ये कर सकते हैं. इसमें जिसको प्रोडक्ट बैकलॉग बोलते हैं, वो फिर वो हम कैसे प्लानिंग में डिसाइड कर सकते हैं. एक बार आपका डिसाइड हो गया कि अच्छा ये टाइम फ्रेम में हम ये टास्क ले सकते हैं. ओके, इसके भी फर्दर ब्रेकडाउन है कि उसमें भी क्या होता है कि आप जब स्टोरी प्लानिंग करते हो तब देख सकते हो कि आप कितना कितना टास्क ले सकते हो. ऐसा तो नहीं है कि हम सब कुछ डिलीवर कर लेंगे एक ही दिन में. अगर हमारे पास 2 ही लोग हैं या जनरली 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम एकदम से पूरा ले सकते हैं. तो ये सब भी डिस्कस होती है कि कितना बैंडविड्थ है, कितना टास्क है, क्रिटिकल है, कितना हम डिलीवर कर सकते हैं. जनरली ये क्या करते हैं, स्प्रिंट गोल डिसाइड करते हैं कि हम कितना स्प्रिंट गोल कर सकते हैं. इसकी भी एक अलग प्रोसेस है, हम कभी डीप में और ले सकते हैं, बट अभी एक जनरल बेसिक एग्जांपल बताते हैं. एक बार प्लानिंग हो गया, उसके बाद क्या होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर में क्या होता है कि इंप्लीमेंटेशन होता है. सब अपने अपने काम पे लग गए. डिजाइनर अपना काम कर रहा है, डेवलपर अपना काम कर रहा है, उसके बाद फ्रंट एंड बैक एंड जो भी है वो भी अपना काम कर रहा है, एंड देन लेटर इट कम्स टू द टेस्टिंग. ये टाइम फ्रेम के अंदर ये सब काम हो जाता है. उसके बाद क्या होता है, इस टाइम फ्रेम में क्या होता है, डेली एक कॉल होता है, दैट्स कॉल्ड डेली स्क्रम. आप टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं डेली स्क्रम. ये क्या होता है, एक कॉल होता है जहां पे डेली एक 15 मिनट का कॉल होता है जिसमें सब लोग ज्वाइन करते हैं. इसमें प्रोडक्ट ऑनर कंपलसरी नहीं होता कि उनको ज्वाइन करना है, बट जनरली स्क्रम मास्टर का रिस्पांसिबिलिटी होता है कि स्क्रम मास्टर ये कॉल रन करे, जिसमें स्क्रम टीम ज्वाइन करे, जिसमें जितने भी डेव टीम है वो ज्वाइन करे और उसमें अपने अपने बारे में बताए कि हाँ अच्छा मैंने कल क्या किया था, आज क्या करना है, और जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ये जनरली स्क्रम मास्टर क्या करता है, सॉल्व कर देता है. तो इससे क्या होता है कि डेली डेली जो आप काम कर रहे हो, अब सबको पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कौन क्या कर रहा है, किसको कोई प्रॉब्लम है तो कोई हेल्प कर सकता है, राइट. दैट्स व्हाट वी सॉ द अर्लियर कि स्क्रम का क्या कॉलेज है, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए. ये तो ये सब चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है. जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आगे सबसे पहले बढ़ते हैं रिव्यू. अब जैसे ही हमने कुछ बनाया तो हम सबसे पहले रिव्यू पे जाते हैं. रिव्यू में क्या करते हैं, हम सब जितने भी स्टेक होल्डर है सबको बुलाते हैं और फिर वहाँ पे उसको दिखाते हैं कि अच्छा हमने ये बनाया, हम उसका डेमो देते हैं. एंड देन वो डेमो के वक्त वो क्या होता है कि वो देखता है कि अच्छा मुझे ये करना है, ये सही लग रहा है, उसमें कुछ चेंजेस हैं, तो वो क्या होता है फीडबैक आप कलेक्ट कर लेते हो. तो स्टेक होल्डर फिर देखेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वही है. इफ इट इज यस देन इट्स गुड, राइट. बट इफ यू गोइंग ऑन रॉन्ग ट्रैक देन दे विल गाइड यू कि अच्छा ये फीडबैक है दैट आई थिंक नीड टू चेंज बेस्ड ऑन द मार्केट. देन यू कैन अमेंड इट इनटू द नेक्स्ट स्प्रिंट, बिकॉज़ ये कैसे छोटी 2 वीक का है, 3 वीक का साइकिल कर सकते हो या मैक्स साइकिल कर सकते हो. आपको वेट नहीं करना पड़ेगा. तो उसका फीडबैक क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा है. तो एक बार जैसे ये रिव्यू कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट होता है रेट्रोस्पेक्टिव. रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि टीम मेंबर बैठते हैं, सब टीम मेंबर, और वो डिसाइड करते हैं, वो चेक करते हैं कि अच्छा ये 2 वीक में जो हमने काम किया या 3 वीक में, ये साइकिल में जो काम किया, ये कैसा जा रहा है. सबसे अच्छी चीज हमने क्या किया, सबसे खराब चीज क्या किया, और उसके बाद हम क्या चीज इंप्रूव करना चाहिए और क्या चीज हम कंटिन्यू कर सकते हैं. तो ये डिस्कशन होती है एंड दैट्स हाउ इट गोस. जैसे ही उस स्प्रिंट का खत्म हुआ, डिलीवरी होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, एंड देन पहला मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा. तो दैट्स अ होल जर्नी. एनी क्वेश्चन? कैन यू गाइस टाइप इन अ कमेंट if you have all okay at this moment? Okay, I take it as a no. Next one. Excuse me. We're going to talk about the more like a product manager का रोल क्या होता है, Scrum Master का क्या रोल होता है, डेवलपमेंट टीम का. Already we talk about, but we can see right. Scrum Master, product owner का क्या होता है, मैनेजिंग स्टेकहोल्डर. स्टेकहोल्डर की जिसका काम है इसको मैनेज करना है, उसका क्या थॉट है, उसका क्या प्रोसेस है, वो ज्यादा उसका इंटरेक्शन ज्यादा होता है, जो मैंने आपको पहले बताया. रिलीज मैनेजमेंट, रिलीज कैसे होना चाहिए, कैसे हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं. उसके बाद दूसरी बात सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, मैनेजिंग द स्क्रम बैकलॉग. बैकलॉग मतलब वो जो हम उसने डिसाइड किया कि क्या बैकलॉग है इन टर्म्स ऑफ एपिक स्टोरी, कौन सा पहले जाना चाहिए. ये सब मेन फोकस, मतलब प्रोडक्ट ओनर इज लाइक अ होल सोल ऑफ द प्रोडक्ट. उसके पास पूरा फुल पिक्चर रहता है, वो डिसाइड करता है. कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो बिजनेस को बात करेगा. बिजनेस इज कवर रेफरिंग टू द स्टेक होल्डर. नाउ स्क्रम मास्टर का रोल क्या होता है, स्क्रम मास्टर क्या करता है, नथिंग मच, ये क्या करता है, एक जितने भी इवेंट्स होते हैं जैसे मतलब स्प्रिंट प्लानिंग हो गया, डेली स्टैंड अप हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव हो गया और रिव्यू हो गया, ये सब कॉल अरेंज करता है. और डेली स्टैंड अप में अगर कुछ ब्लॉकर है तो ही विल बी रिस्पांसिबल टू सॉल्व इट, कि कौन बंदा है सॉल्व कर सकता है, क्या डिपेंडेंसी है. सो ही शुड बी ट्रांसपेरेंट, मतलब हाँ अच्छा ये प्रॉब्लम है, टीम स्टक देयर, देन ही विल सी हु इज द राइट पर्सन, whether product owner, whether any technical team who can help him. So he's kind of helping member of everyone. Development team, already I said, like development team is belongs to everyone. I mean, when we say the development team, it's like UI, UX, design, development, testing, delivery, self-organization, right? So this is something how you see those roles for the member. जनरली अगेन इट्स द सेम थिंग कि अगर मान लो 6 महीने का काम है तो उसको कैसे फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं. तो जनरली लोग क्या करते हैं, एपिक में, एपिक बड़ा चीज हुआ जो सोचा है उसको एपिक में कन्वर्ट करते हैं. एपिक को फिर फर्दर ब्रेक डाउन फीचर में करते हैं, या जनरली फीचर में नहीं कर, यूजर स्टोरी में कर दिया, फिर यूजर स्टोरी को मल्टीपल किया तो टास्क,
तो इस डिपेंड्स, इट्स लाइक अ ब्रेकडाउन। तो जनरली जो होता है कि ड्यूरेशन जो स्टोरी होता है 2 से 3 वीक्स जो हमने आपको बताया पहले। तो इस नॉर्मल प्रोसेस की कोई भी इनिशिएटिव है उसको पिक में, स्टोरी में, फॉर द टास्क में, और स्टोरी को ही यूजर स्टोरी बोला जाता है। ये भी हम देखेंगे यूजर स्टोरी कैसे लिखते हैं, ये भी एक अलग तरीका है, कभी डीप डाइव में जाएँगे, बट आज मैं हाई लेवल ले रहा हूँ इसका। सेम एक एग्जांपल दिया कि विजन है, इंक्रीज कैसे करना चाहिए बैंकिंग का वेबसाइट, गोल क्या होना चाहिए, एपिक कैसे होना चाहिए, मल्टीपल फीचर्स जो हमने बात किया। फिर उसको स्टोरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि कस्टमर को पेमेंट चेक करना है, तो एज़ अ कस्टमर क्या फाइंड कर सकता है। तो जनरली जब स्टोरी लिखते हैं एज़ अ कस्टमर, एक जनरल एग्जांपल एज़ अ कस्टमर आई नीड दिस सो दैट व्हाट विल हैपन। सो जनरली एक फंडा है राइटिंग ऑफ यूजर स्टोरी बोल सकते हो। राइट। अब क्या होता है कि अब ऐसा नहीं है कि अब इतना सारा कॉल है और मान लीजिए 3 वीक का, हम एक जस्ट एग्जांपल बताते हैं कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं 2 वीक का हमें स्प्रिंट डिसाइड करते हैं। आप अप टू 1 टू 4 वीक स्टार्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा ही रहता है। जनरली मैंने देखा है 2 से 3 वीक रखते हैं इज़ आइडियल, ईदर समटाइम्स 2 वीक्स, जनरली समटाइम्स 3 वीक्स, डिपेंड्स। लेकिन कैसा है कि इतने सारे कॉल्स होंगे तो डेवलपमेंट टीम यही बोलेगी अच्छा कॉल लेंगे इतना या काम करेंगे, राइट? दैट्स द अल्टीमेट थॉट। तो ये क्या है कि टाइम लिमिट है, टाइम बाउंडिंग। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम स्पेंड करना है कि दिन भर आपको कॉल ही लेना है ना आपको डिलीवरी करना है, काम काम छोड़ के। तो जनरली दिस इवेंट में क्या होता है कि हर एक टाइम टाइम फ्रेम सेट किया गया है कि एक जैसे स्प्रिंट प्लानिंग हो गया। अगर आप स्प्रिंट प्लानिंग करते हो, अगर आपका स्प्रिंट जो है 2 वीक का है, राइट? तो 2 वीक के स्प्रिंट में आप क्या करते हो कि जनरली आप 4 घंटे से ज्यादा स्प्रिंट प्लानिंग नहीं कर सकते हो। दैट्स द टाइम फ्रेम। ऑफ कोर्स लेस यू कैन डू इट, बट शुड नॉट बी मोर देन दैट। अगर 1 वीक का है तो 2 घंटा। सो जनरली इन जनरल एक पर वीक 2 आवर। डेली स्क्रम 4 वीक का हो, 3 वीक का हुआ, 15 मिनट का डेली होना ही चाहिए। दैट हैज टू बी फिनिश्ड विदिन अ टाइम विदिन अ 15 मिनट। नाउ स्प्रिंट रिव्यू अगेन पर वीक 1 आवर। लाइक अगर आप 2 वीक का कर रहे हो तो 2 घंटे, 3 वीक का कर रहे हो 3 घंटे। अगेन ये कंपल्सरी नहीं है कि 3 घंटे ही होना चाहिए। इफ यू कैन कंप्लीटिंग मिनिमम इट्स फाइन, बट शुड नॉट बी मोर देन मैक्सिमम। रेट्रोस्पेक्टिव इज लाइक 0.7 0.5 आवर पर आवर। तो जैसे 2 वीक का है तो 1.5 घंटे होना चाहिए। तो ऐसा काम होता है। अब इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात क्या होती है कि जो स्क्रम टीम होती है उसकी साइज जनरली ऐसे डिफाइन किया जाता है कि शुड नॉट बी मोर देन 9। अब ऐसा होगा कि मान लो एक टीम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, टीम जो है बहुत 15 मिनट है, ये 15 लोगों की टीम है, तो ये 15 मिनट में सबके पास जाते जाते मुझे 15 मिनट में डेली स्टैंड अप में क्या होगा, मैं सबसे पूछता हूँ कि अच्छा ए जनरल फंडा कैसा है डेली डेली स्टैंड अप का कि व्हाट यू डिड यस्टरडे, व्हाट यू गोइंग टू डू टुडे एंड व्हाट्स योर ब्लॉकर, डू यू हैव एनी ब्लॉकर और इंप्लीमेंट, राइट? देन अगर ये तीन लाइन अगर लोगों ने बोला कि अच्छा मैं इस पे काम किया था, आज इस पे काम करने जा रहा हूँ और मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, फिर क्या होगा कि ये प्रोसेस अगर 15 लोगों के पास गए तो लोग अगर एक एक बंदा अगर एक टाइम ले रहा है, एक मिनट से ज्यादा ले रहा है, तो 15 मिनट में खत्म ही नहीं होगा। तो एक ऐसा माना जाता है कि जनरली स्क्रम टीम शुड कंसिस्ट ऑफ 3 टू 9 पीपल, राइट? मिनिमम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम 9 होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि ज्यादा सही राइट आउटकम नहीं मिलेगा। ओके। नाउ अब एक एग्जांपल लेते हैं। 2 वीक का स्प्रिंट हम चलाते हैं तो फिर कैसे होगा? ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि एक 2 वीक के स्प्रिंट में क्या होगा कि हमारे पास रिक्वायरमेंट आया। कहाँ सॉरी हमारे हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आया। रिक्वायरमेंट में क्या आ रहा है कि एक स्टेक होल्डर इनपुट दिया, किसको देगा? प्रोडक्ट ओनर को, राइट? तो प्रोडक्ट ओनर क्या करेगा? एक प्रोडक्ट बैकलॉग को डिफाइन करेगा। दैट्स दैट्स नथिंग बट लाइक ए लिस्ट ऑफ एपिक्स स्लैश यूजर स्टोरी। जो पहले अभी हमने आप पहले देखा कि एक प्रोडक्ट ओनर क्या करता है कि विजन को कन्वर्ट करके एपिक में करता है और एपिक को क्या करता है? कन्वर्ट करके स्टोरीज में करता है। मतलब वो ब्रेक डाउन करता है कि ये होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग इज नथिंग बट लिस्ट ऑफ ऑल दोस टास्क, प्रायोरिटाइजेशन कि क्या करना है, नहीं करना है, राइट? अब जैसे ही हमारे पास सब आ गया कि फुल एंड टू एंड क्या काम करना है, नहीं करना है, लाइक यूजर स्टोरी करना है, वायरफ्रेम बनाना है, डिजाइन बनाना है, टेक्निकल आर्किटेक्ट बनाना है, तो हमारे पास लिस्ट आ गया। अब आगे क्या होगा कि स्प्रिंट स्प्रिंट प्लानिंग में क्या होगा? प्रायोरिटाइजेशन करेंगे कि अच्छा ये 4 चीज़ में हमें कौन-सा ज़रूरत है? तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? वायरफ्रेम चाहिए, राइट? कि वायरफ्रेम बिना वायरफ्रेम हम प्लान कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा आपका विज़न था नेट बैंकिंग का, तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी मेक इट द वायरफ्रेम कि कहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, कहाँ पे यूज़र नेम आना चाहिए या कहाँ पे पासवर्ड आना चाहिए, या हम थर्ड पार्टी से लॉगिन कर सकते हैं, राइट? देन दे कैन सी द आइडिया। तो ये डिसीजन यहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन हो जाएगा कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। एट द सेम टाइम कैन वी डू द स्टार्ट द डिजाइनिंग और एट द सेम टाइम कैन वी स्टार्ट द प्रिपेयरिंग द एनवायरनमेंट, राइट? कि टेक स्टैक क्या होना चाहिए, कि जैसे टेक स्टैक में फॉर एग्जांपल एंगुलर हम ले रहे हैं, फ्रंट में बैकएंड में जावा ले रहे हैं, डॉट नेट ले रहे हैं, क्या लेना है? तो ये सब चीज़ कैसा होता है? ये सब डिसीजन हो जाता है कि हाँ, देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोज़ इन अ पैरेलल एंड दैट व्हिच हैज़ अ विजन ऑफ द प्रोडक्ट ओनर। ओके। उसके बाद सेम चीज़ यूज़र स्टोरी ब्रेक डाउन किया कि अब ग्रूम होता है। तो जो जो हम प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग ग्रूम भी किया जाता है। अगर आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्रूमिंग। ग्रूमिंग क्या होता है कि प्लानिंग होने के बाद क्या ग्रूम होता है कि अच्छा हर टिकट का काम क्या है? अब एज़ अ डेवलपमेंट टीम कि हमने आपको एक टिकट दे दिया कि अच्छा ये काम करना है, यूज़र स्टोरी दे दिया। तो आप बोलोगे अच्छा इसमें लिखा क्या है, कैसे क्या करना है, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो जनरली एक बीए क्या करता है कि दे विल गो थ्रू द ग्रूमिंग। ग्रूम करता है। इटसेल्फ अ ग्रूम मतलब कि आपको बता रहा है कि क्या करना है, नहीं करना है, आपको बता रहा है। तो फिर आपको आइडिया अच्छा ये इसका इस टिकट में ये फंक्शनलिटी लिखना है, ये करना है और वो उसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया बोलते हैं। उसको एक लिखा जाता है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अ वे ऑफ राइटिंग। अगेन देयर आर मल्टीपल वे ऑफ राइटिंग एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। तो वो उसको ब्रेक डाउन करता है कि क्या-क्या फीचर लिखना है, कैसे क्या करना है, 1, 2, 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके बाद क्या होगा, ये जनरली ग्रूम हो गया, ये सब इसी में हो जाते हैं। मतलब अगर आप बोलते हो तो ग्रूमिंग का एक अलग सेशन ले सकते हो या प्लानिंग के साथ ही कर सकते हो कि प्लानिंग में क्या-क्या कर रहे हैं और उसको ग्रूम कर सकते हैं। अब 2 वीक का एक फ्रेम स्टार्ट किया, 2 वीक में क्या होगा कि डेली स्टैंड अप डेली होंगे। डेली स्टैंड अप में क्या होगा, सब लोग जॉइन करेंगे, एज़ यू कैन सी। प्रोडक्ट ओनर जनरली ऑप्शन रहता है कि अगर मन है तो जॉइन करेगा, नहीं तो स्क्रम मास्टर इज़ रिस्पांसिबल फॉर दैट। अब स्क्रम मास्टर क्या रहता है कि ये पूरी टीम को देखता है, क्या करना है, नहीं करना है और ये 2 वीक में क्या होगा, सेम प्रोसेस कि हमें स्प्रिंट गोल समझ में आ गया, 2 वीक में हमें क्या करना है, लोगों को समझ में आ गया कि हमें क्या-क्या टास्क मिला है। बहुत सारे अलग-अलग टूल्स आते हैं, उसकी तरह टास्क असाइन कर दिए जाते हैं, फिर उसमें टाइम दे दो कि क्या कर रहा है। तो जब आप डेली स्टैंड अप करते हो तो जनरली एक जीरा टूल यूज़ करते हैं कि अच्छा ये टूल में ये टास्क ये है, उसको आप अटैच कर सकते हो, टास्क को स्टोरी से अटैच कर सकते हो, स्टोरी को एपिक से अटैच कर सकते हो, ताकि इन फ्यूचर में भी आपको रिव्यू करना हो तो ईज़िली यू कैन डू इट। ये सब करने के बाद क्या होता है, उसमें आप अपडेट भी कर सकते हो कि अच्छा मैंने ये टास्क पे कंप्लीट कर दिया। एक बोर्ड आता है, जहाँ पे बोर्ड में आपको ये कर सकते हो कि इन प्रोग्रेस, टू डू स्लैश इन प्रोग्रेस टू
यूएटी में जा रहा है या टेस्टिंग प्रोसेस में है, एक फेज होता है, कभी और हम ये सेशन ले सकते हैं। तो वो क्या करता है कि आप डेली स्टैंड अप में आप वो स्क्रम मास्टर रिप्रेजेंट करता है कि अच्छा ये टास्क, लिस्ट ऑफ टास्क है, एंड यू द टीम डेव टीम इज इटसेल्फ रिस्पांसिबल टू ट्रैक इट कि उसका प्रोग्रेस क्या है, आज ये प्रोग्रेस है। तो जब वो रिप्रेजेंट करता है डेली स्क्रम में, तो बताता है कि अच्छा मैंने टास्क ए पे काम किया था, आज ये प्रोग्रेस में, कल मैं इसको फिनिश करने वाला हूँ। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि मैंने कल फिनिश करने वाला हूँ तो कल ही होना चाहिए, राइट? यू नेवर नो, राइट? दैट कुड बी टेक मोर टाइम। तो एक आइडियल हाई लेवल दिया जाता है कि अच्छा ये टास्क इतना टाइम में होगा, और ये चीज फिर बोलोगे अच्छा ये आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये 2 वीक में हमें क्या काम लेना है। तो जनरली क्या होता है कि एक हाई लेवल एस्टिमेशन दिया जाता है, जब प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं तो उसमें ये भी करता है कि स्प्रिंट गोल बनाया जाता है, उसमें एक प्लान करते हैं कि हमें कितना टास्क लेना है। सब लोग एक टास्क को ना ये देते हैं, नंबर देते हैं, लाइक 1 टू 10, एक अलग-अलग तरीका होता है, 1 3 5 7 फिबोनाची सीरीज जनरली ये करते हैं। उसके हिसाब से वो डिसाइड होता है कि हमें क्या काम लेना है, नहीं लेना है, और उस हिसाब से काम चलता है। फिर ये 2 वीक में क्या होगा, डेवलपमेंट काम होगा, सब टीम काम कोलैबोरेट करेगी, डेली स्टैंड अप होगा। एक बार जैसे ही ये 2 वीक खत्म हुआ तो क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, फिर स्प्रिंट रिव्यू हो जाएगी आपकी। आप बिज़नेस को बताओ कि अच्छा ये काम हो गया, हम ये डेमो दे रहे हैं आपको, ये डेमो के बाद आप रेट्रोस्पेक्टिव करते हो, फिर रेट्रो में आप डिफाइन करते हो कि अच्छा क्या-क्या काम गया, क्या इंप्रूव करना चाहिए। फिर वो नेक्स्ट स्प्रिंट में आप वो चीज़ इंप्रूव करते हो। सो दिस इज द होल प्रोसेस। अब रिक्वायरमेंट का तरीका क्या होता है कि जनरली रिक्वायरमेंट आपको अलग-अलग तरीके से आते हैं, बट आप ये अजाइल फॉलो करोगे तो आपको हर स्टोरी का टास्क लिखा जाता है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है कि आपको कैसे यूजर स्टोरी लिखते हैं। तो ये बिजनेस एनालिस्ट का काम है कि आप अच्छा वो कैसे क्या करना है वो लिखता है, और आप इजीली उसको अच्छे से समझ पाओगे। जब ग्रूम करेगा तो आपको बताएगा, और उसमें फ्रेगमेंट करके लिखा जाता है कि अच्छा ये टास्क किया जाता है। सो इन दिस वे आप क्या करते हो, एक बड़े प्रोडक्ट को एक छोटे से 2-2 वीक के इंटरवल में एक 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 बड़ा प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो। तो अगर इस एग्जांपल को अगर नेट बैंकिंग के हिसाब से हम सेट करें, तो पहले 2 वीक में क्या है, एक लॉगिन का फीचर दे रहे हो। 2 वीक में क्या होगा, लॉगिन के साथ आप क्या कर रहे हो, यूजर को लॉगिन भी दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन भी दे रहे हो, एंड देन लेटर ऑन यू कैन सी द हिस्ट्री। तो यूजर को बैंक जाने की जरूरत नहीं है कि मैं सॉरी नॉट हिस्ट्री, लाइक अमाउंट कितना है, बैंक बैलेंस कितना है। तो अब क्या होगा कि मुझे अब जनरली बैंक बैंक जाके मुझे देखना पड़ता है कि क्या मैं मेरा बैंक बैलेंस क्या है। अब यहाँ मैं लॉगिन कर रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड, लेकिन अभी भी ये फुल फीचर नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। आई एम स्टिल यूजर कैन यूज इट, राइट? अब इसे कितने यूजर आप जाना नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डिलीवरी, नेक्स्ट 2 स्प्रिंट में क्या होगा कि ये फीचर को हम एक्सटेंड करके हिस्ट्री दे सकते हैं कि अच्छा हिस्ट्री देख लो कि कहाँ से आपका ट्रांजैक्शन आया, कहाँ से क्या पैसा हुआ। देन नेक्स्ट 2 वीक में आप इसमें और फीचर ऐड कर दो, आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। दैट्स हाउ इट गोस। तो इसमें क्या होता है कि छोटा बिग बैंग करते-करते एक बड़े प्रोडक्ट को आप अचीव करते हो। So that's all for today. I think I can go for the question and answer. So let me just open the chat. Oh, the first question is like, Junaid. So again, most of the people, yeah, you're absolutely right on that. Like agile ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। वाटरफॉल जैसे छोटा प्रोजेक्ट है, ठीक है? जैसे 1 महीने का काम है, तो उसमें क्या है, फिर आप अजाइल करोगे, तो क्या होगा कि अजाइल में आपको 2 वीक में, तो कुछ लोग छोटे टाइम फ्रेम में इसको भी यूज़ करते हैं, वाटरफॉल को भी लेके चलते हैं। तो ऐसा ये नहीं बोल सकते कि कहाँ पे यूज़ होना चाहिए, अगेन पर्सन टू पर्सन देयर ऑब्जर्वेशन, बट छोटा टाइम है, तो अजाइल इम्प्लीमेंटेशन करने से अच्छा है कि वाटरफॉल करो एंड देन फिनिश इट इन इवेंट। बट अगर लॉन्ग टर्म है, बड़ा, तो आई थिंक अजाइल इज बेटर।